जी और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है कमल जी सर ने और वीडियो का टाइटल है 11 कॉमन इंडियन रिचुअल्स दैट आर सरप्राइजिंगली साइंटिफिक। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इनकी वीडियोस बहुत अच्छी चलो चले एग्जाम के लिए। हाँ बस 1 मिनट दे, दही चीनी खा लूं। तू लेगा? हाँ, अरे दही पागल चीनी है खाते क्या? तो अच्छा मैं काम नहीं है। मानता ये सब चीजें। और आज अपना लिटरली साइंस का एग्जाम है। चल आजा। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे यहाँ दही लगा हुआ है। India is a land of innumerable traditions and customs. Although despite having witnessed or belonged to this rich society, we lack the rationale behind these rituals and brand them superstitious and meaningless. Watching this video, you will be surprised to know that the common rituals practiced today actually have a smart logic behind them. So without any further delay, let's get started. Hello friends, welcome to FitTuber. Why is it said that someone is missing you when you get hiccups? Well, what can be the logic behind such a bizarre tradition? Well, it's quite a smart way of distracting one's mind in thinking who the person could be, and as a result, hiccups automatically stop. Have you been to a place where throwing coins in a well was a part of a tradition? The general reasoning given for this act is that it brings good luck. However, it was one of the far-sighted methods our ancestors came up with to ensure safe drinking water. In olden times, most of the currency used was made of copper, unlike the stainless steel coins of today. Placing copper coins underneath the water helps in killing the bad bacteria. Also, copper is a vital metal very useful to the human body. Throwing coins in the river was one way our forefathers made certain we intake sufficient copper as part of the water, as rivers were the only source of drinking water. In modern times, throwing steel coins may not help, but drinking copper charged water surely will. One of the most common exam rituals that almost all of us have grown up following is that of eating a spoonful of curd and sugar before any crucial exam. But why? The answer to this is found in the Ayurvedic scriptures. Firstly, curd and sugar combination being fundamentally sweet helps supply glucose to the body, which raises your energy level. Another reason why the combination is offered right before the exam is that curd and sugar or anything meetha has been called Buddhi Vardhak in Ayurveda. Thirdly, it has a cooling and soothing effect on the body and mind. So the next time you are out for an important meeting, don't forget to have dahi with mishri powder. No matter how much amount you give for shagun, it always ends on 1. Ever thought why? Well, an amount that ends in 0 suggests the end of a transaction. But the additional rupee connotes continuity and the hope of future exchanges. Here's how the lone rupee becomes a symbol of an everlasting relationship. But why a rupee coin? Why not a paper note? That's because metal or dhatu is considered to be a form of goddess Lakshmi, which keeps negative energy away and marks prosperity. Heard someone say today is my Tuesday fast? Superstitious, isn't it? Well, there is more than what meets the eye. Fasting for Indians is not an obligation but a moral and spiritual act where the aim is to purify the body and mind. Because the body does not have to do the work of digestion, it has more energy to focus on the spiritual aspects. That's actually why it's called Upavas. Upa means near and Vas means to stay, staying near to God. In India, people would choose various days in a month as a reverence to their favorite deity and fast for spiritual growth. Of course, the countless physical and mental benefits of fasting have now been well noted by modern science. From controlling obesity to improving hormonal balance to the growth of new brain cells, this holistic detoxifying practice is worth every effort. The dash of sindoor or vermilion powder on a bride's forehead is her holiest mark as she begins her journey as a bride. But do you know the physiological significance behind this ritual? Traditionally, sindoor is prepared by mixing turmeric, lime and mercury, which is known to control blood pressure and activate sexual drive. This also explains why widows do not use it. To make it more effective, sindoor is put starting from the forehead all the way to the pituitary gland, the seat of thoughts and emotions.
emotions. Newly married women are also advised to wear heavy, tight bangles. This is an intelligent way to press the veins underneath to increase the blood flow in reproductive organs, resulting in easy conception. Another masterpiece is the toe ring, which is inevitably worn on the second finger. A particular nerve from the second toe connects the uterus and passes to the heart. Wearing a toe ring on this finger helps strengthen the uterus by regulating the blood flow to it, thereby regularizing the menstrual cycles. Moreover, for a woman, all these are prominent marks of being married and so not to be persuaded by other males. We have all seen lemon and chilies hanging on the trucks, cars, shops, etc. haven't we? The belief is that it wards off evil spirits. Practically, local restaurants place this combo on the table to save their customers any trouble from the insects that may hover around for food. The active heat-producing ingredient capsaicin repels mosquitoes and flies because it is an irritant. More interestingly, centuries ago, when people had to undertake long travels on foot, they often had to traverse through a variety of landscapes and encounter the threats of predators and inconsistent water supply. To combat these issues, it seems our traveling heroes carried our good old Nimbu Mirchi with them. The lemon was meant to keep them hydrated, while the chili could be used to check if snake bites were venomous or not. It was believed that when the traveler bit on chili and couldn't taste it, it would indicate that the snake was poisonous and numbed his or her nerves. Smart, isn't it? Every day, Indians would welcome the sun, the source of life on this planet, by their water offering ritual. Well, there are great benefits to this practice backed up with scientific significance. When the sunlight passes through water, it breaks down into a spectrum of 7 colors. It is in this form that the sun's energy is absorbed maximum by our body. It helps to balance the 3 doshas, improves eyesight, strengthens the heart, and enhances mind power. And of course, this practice also helps to bring discipline into one's life, as it makes you rise before the sunrise, allowing you to maximize the hours in the day. What is the significance of celebrating Ganpati Visarjan? 10 days after welcoming Lord Ganesha to our homes on the occasion of Ganesh Chaturthi, devotees bid adieu to Ganesh idols on the day of Anant Chaturdashi. But what is the purpose? Well, it's deep and sagacious. The Visarjan ritual symbolizes the cycle of birth and death. It's a reminder that nothing is permanent and that change is the only constant. It's a reminder that everyone who is born on this planet or that exists shall perish one day. Moreover, the reason why the idols are immersed in a water body also has a profound meaning. The ocean or the water body represents the infinite, and the idol is the soul seeking salvation. In the olden days, our ancestors were conscious enough to make Ganesha idols using herbs like turmeric, neem, and clay, which would not only get easily disintegrated but also render the water bodies clean. Why do we not touch books with our feet? Well, our feet, even though they are very important, are considered to be the dirtiest part of our body in regard to the fact that they come in contact with the ground first, and so contact with dust is inevitable. The outdoors may not be very clean as we would like it to be. Hence, a great effort has to be made to avoid stepping over someone, any food, utensils, or books. Our culture has always regarded knowledge as sacred and divine, and therefore must always be respected at all times. The ritual or custom of not touching any educational tools with our feet shows us the pedestal on which we put knowledge in Indian culture. So these were some of the common Indian rituals which I believe have a logic behind. This gives us an idea how intelligent our forefathers were in designing various rituals and customs for the holistic well-being of us and the environment. Did you find this video helpful? If you would like to see another part of this video, don't forget to give a thumbs up. Check out the Tribe Concepts Face Brightening Kit, which has 2 products, 24K Kumkumadi Tailam and Face Brightening Daily Cleanser. Kumkumadi Tailam, a renowned face oil mentioned in Ayurvedic scriptures, helps brighten the skin, reduces pigmentation, and is anti-aging. The Tribe Concepts Face Brightening Daily Cleanser is another 100% herbal formulation that gently cleanses the face. Take 1 teaspoon of the cleanser and add adequate water. Apply it all over the face and neck. Gently massage for a few seconds and then wash off with plain water.
Now take 3 to 4 drops of Kumkumadi Tailam and apply it evenly to the face and neck. Authentically prepared, this oil will keep your skin soft and supple. To buy the Tribe Concepts Face Brightening Kit, click on the link down in the description box. So friends, that's all for this video. You can now support my work by clicking on the join button below. Please do remember to subscribe to my channel, hit that bell icon so that you never miss a video from me. You can also follow me on Instagram. My name is Vivek. I thank you so much for watching. रिचुअल्स की बात की जाए तो ये एक ऐसी चीज है कि मेरे मुताबिक इसके बगैर जो है ना आपका जो कल्चर है ना वो पूरा नहीं होता। मैं अगर हम यहाँ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कल्चर की बात करूँ ना तो ये इतना रिच है, इसमें इतने ज्यादा रिचुअल्स हैं और हर रिचुअल का कोई ना कोई मतलब जरूर है। आई थिंक हम लोग थोड़ा सा अगर मतलब ये कहेंगे कि कुछ किलोमीटर्स पर चले जाएंगे तो वहां पर रिचुअल्स डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये है कि बेस जो है वो सेम ऑलमोस्ट रहती है। बट ये कि रिचुअल्स तब इंटरेस्टिंग ज्यादा लगते हैं वाकई में जब आप उसकी लॉजिक भी देते हो, क्योंकि अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि भाई आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसका क्या लॉजिक है, तो आपके पास आंसर होगा। तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं ना, अब मैं ये नहीं कह रही कि हर चीज प्रूवन होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट आई थिंक आपको लॉजिक पता हो तो वो और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा निखर कर आता है। अभी जैसे हम लोग सबसे पहले हिकअप्स की बात करें, तो हिचकी लेते हैं तो यहाँ पर भी ऐसे बोलते हैं कि कोई याद कर ये चीज कहाँ से आई है ये हमें पता चल गया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी वैसे कहा जाता है कि मीठा खा लो, पानी पी लो, इससे भी क्या होता है कि हिचकी जो है वो खत्म हो जाती है। खड़े हो जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, उससे भी क्या होगा कि जरा आपका ध्यान बढ़ जाएगा तो हिचकी जो है वो आपको नहीं लगेगी। लेकिन समटाइम्स बड़ी ढीठ हिचकी होती है, नहीं खत्म होती है। वो याद करने वाला जो था ना आपको बड़ी शिद्दत से याद कर रहा था, उसका पता नहीं दिल कर रहा था आपसे मिलने का, तो इस वजह से वो कहता है वो हिचकी जो है ना आपको बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ शायद आ रही होती है। लेकिन नो डाउट हिचकी जो है ना जब भी आपको आती है सबसे पहले आपके जहन में यही बात आती है कि यार कोई ना कोई मुझे जरूर याद कर रहा है। फिर उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा जो सिक्के फेंकने वाली बात है। हमें अक्सर मूवीज में भी जो है ये चीजें देखने को मिलती हैं कि वो विश वेल जो है इस तरह का जो कुआं देखने को मिलता है, लेकिन बेसिकली उसका जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे आज पता चला कि बेसिकली पुराने वक्तों में कॉपर के सिक्के फेंके जाते थे जिससे जो है पानी साफ होता था। पानी का एक सोर्स वो ही रहा करता था। तो वही तो मैं कह रही कि वो जो हम लोग मॉडर्न चीजें उसकी तरफ बड़ा अट्रैक्ट होते हैं ना, और हम लोग विश वेल जैसे मॉडर्न बोला कि वाकई में मैं भी कॉइन फेंकना चाहूंगी, तो बट आजकल के कॉइन जो है वो सही नहीं है, इसलिए वो नहीं फेंकते। मतलब अभी वीडियो देखते हुए मैं कह रही थी मैं तो सोच रहा था जाते हुए ना रावी वे या क्या नाम लेते हैं इधर ये लाहौर के अंदर नहर, वहां फेंकेंगे कॉइन, विश मांग लेगा कोई, लेकिन मौसम को ये जरूर बोलती हूँ क्योंकि मैंने कॉपर के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स सुने हुए हैं और बहुत सारे लोग ये बोलते भी हैं कि कॉपर के बर्तन, कॉपर का ग्लास, जग, एटलीस्ट जग जरूर होना चाहिए। और मैं मौसम को अक्सर बोलती हूँ मौसम एक जग हम खरीद लेते हैं मतलब मैं अपने लिए ये बात करती हूँ, बट आई डोंट नो कि कब खरीदने जाऊंगी, लेकिन आई थिंक बहुत जल्द हम मैं कॉपर का जग जरूर खरीद। और वैसे अगर कॉपर के जग की बात करें तो वाकई एक चीज है कि बहुत कॉस्टली है कॉपर का जग। कॉस्टली जग होगा बिल्कुल। पता है पहले जमाने में मैं देखती हूँ कि ना जो हमारे जो बड़े होते थे ना उनके पास ये वाले बर्तन हुआ करते थे। अभी ये चीजें खत्म हो गई हुई हैं, अब तो शर्मिंदगी महसूस होती है। भाई मैं हकीकत बता रहा हूँ कि इस तरह का जो अगर आपके घर में कोई चीज पड़ी हुई है ना, तो अगर ऐसे वो क्या कहते हैं उसे जो एंटीक पड़ा हुआ है, तो फिर बहुत ज्यादा लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि भाई हम घर ये वाले इस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, तो लोग है ना आपको एक अजीब, हालांकि वो बड़े महंगे बर्तन होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो अजीब आपको जो है ना वो एक फीलिंग देते हैं। बात ठीक है, फिर वही बात आती है सोसाइटी ना डिवाइड हो गई है। कुछ लोग अभी भी यूज करते हैं, मतलब हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो स्टील के बर्तन अभी भी यूज करते हैं। हम भी बचपन में स्टील के बर्तन यूज किया करते थे, बट फिर उससे क्या हुआ, वक्त के साथ साथ चेंज होते गए, तो उसके बाद हम लोग भी शीशे और ये चीनी और ये वो वाली बर्तनों पर आ गए, जो कि मुझे लगता है हालांकि उस टाइम पर हमें उसकी अफादियत का पता नहीं होता था। बट मुझे ये अच्छे से याद है कि मेरी अम्मी की जो हेज के बर्तन थे वो, और बड़े खूबसूरत बर्तन थे, उनके ऊपर बड़ी वो ग्लास भी थे जो कि बड़े नक्शनिगारी फूल बने हुए थे, बड़े प्यारे लगा करते थे, स्टील के होते थे वो। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि पता है बर्तन कोई भी हो लेकिन वो साफ हो ना, आपका उसका खाने में दिल करेगा। बस प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब हम चीजों को साफ नहीं रखते तो फिर आप कहते नहीं ये मैं नहीं इसमें कर सकते। मुझे थोड़ा सा इसलिए इशू होता है
कि आप सफाई का ख्याल रखो, आप स्टील के बर्तन में भी खा सकते हो, कॉपर के और इवन के मिट्टी के बर्तन में भी खा सकते हो। वैसे हकीकत है, सफाई जरूर होनी चाहिए। अच्छा जी, जो नेक्स्ट वाला है शुगर वाला और कर्ड वाला, ये भाई मेरे लिए वाकई में जाना बड़ा जरूरी था, क्योंकि हम लोग बड़ी देर से मूवीज में सीरियल्स में देखते आए थे, तो मुझे इसका भी बड़ा अच्छा लगा कि आपकी बॉडी पे एक इम्पैक्ट रहता है यार इसका। अगर हम सीरियस और उसके अलावा भी अगर हम अपने लोकल यहाँ पर देखना, जैसे कोई त्योहार आता है तो हमारे जो है मीठा लाजमी बनता है कि मीठा जो है नहीं दही नहीं, असल में लाजमी थोड़ी कि अब दही और वही खाना है, अब मीठा कुछ भी आप खा सकते हैं। तो ये कि एक हाँ एक खुशी की अलामत है मीठा की, क्या नाम लेते हैं, जो कुछ भी होगा एक अच्छा होगा, आपका दिन अच्छा रहे, इस वजह से जो है इनकी कोई आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना तो दही मीठा खाना चाहिए। मेरी अम्मी ने तो आज तक नहीं भाई, मेरे एग्जाम से पहले मेरे हालांकि पेट में दर्द हो रहा था कि आज एग्जाम में, वो डर वाली एक लहर होती थी ना, बट मुझे कभी किसी ने कहा भाई मिठाई खा के जाओ। भाई हमें जो है ना खिलाया भी जाता था ना, दही में इस पे गोल डाल के खिलाया जाता था ताकि पेट साफ हो। अच्छे से याद है कि जब हम छोटे थे, स्पेशली मैं और मौसम, अच्छा मैं जब दही में चीनी डाल के, मैं जब बड़ा भाई बोलती हूँ तो बड़े भाई से मुराद मेरे से बड़ा भाई, मौसम से बड़ा, मेरे से छोटे हैं दोनों, तो मतलब ऐसे मैं बड़ा भाई बोलती हूँ, मेरे से बड़ा कोई भाई नहीं, हम तीनों बहनें बड़ी हैं। तो मैं मौसम और उमर, हम लोगों को अम्मी जब दूध लेने जाया करती थी ना एक दुकान पे, 2 साल लेकर जाया करती थी और हम तीनों को प्याले दही के खिलाया करती थी वहां से, याद है? हाँ, तो बस वो मुझे याद है, अदरवाइज इस तरह से। फिर उसके बाद अगर बात की जाए, अम्मी घर में जब दही जमाती थी, फिर वो हमें घर का दही खिलाना शुरू हो गए, और जो है वो उसके ऊपर दही के ऊपर चीनी डाल के हमें दिया करती थी। अभी तो वैसे मैं चीनी बिल्कुल भी नहीं खाती, बहुत चेंज हो रहा था भाई इंसान वक्त के साथ साथ। और शगुन वाली बात मौसम के बकौल यहाँ पर होती है, वैसे मुझे बिल्कुल नहीं पता भाई। शगुन वाली बात जो है ना वो मैंने यहाँ पे भी, यानी कि फॉर एग्जांपल आप कुछ करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि 7 रुपए 9 रुपए या 11 रुपए जो है ना वो बांट देना, यानी कि इतने रुपए की कोई चीज बांट देना। तो ये चीज जो है ना 11 रुपए वाली, ये मैंने यहाँ पर भी सुनी हुई है कि यार जो है ना इस तरह के अदाद जो होते हैं जैसे उसके मुताबिक है वो चीज देनी चाहिए। ये मौसम को नॉलेज, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आज मुझे पता चला कि अगर जब एक आता है तो वो चीज रुकती नहीं है, वो चलती रहती। ये कॉन्सेप्ट मुझे तरह आज के लिए, वैसे पहले भी मुझे किसी ने बताया था कि जब एक आ जाए ना तो इसका मतलब है कि चीजें चलती रहती हैं। लेकिन क्यों चलती रहती हैं वो आज पता चला है। और अगर फास्टिंग की बात करें तो फास्टिंग का तो फायदे हम लोगों को पता थे। और यहाँ पर मैं बात करूंगी सिंदूर का, और जो पैर में बिजिया, आई थिंक बिजिया बोलते हैं ना उसको, पता नहीं, यहाँ पर भी टोरिंग बोलते हैं। हाँ, टोरिंग तो बोलते हैं, लेकिन उर्दू में भी कुछ उसका नाम होता है। बहुत सारी अंगूठे की अंगूठी। लेकिन ये देखो कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है, वो मुझे इतना ज्यादा पता नहीं। शायद हम लोगों ने पहले भी किसी वीडियो में देखी है, क्योंकि हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड पहले वीडियो देखी हुई है। सिंदूर का मुझे फिर भी थोड़ा आइडिया था, लेकिन जो टो रिंग की मैं बात करूंगी ना, उसका मुझे इतना आइडिया नहीं था। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो आज पता चली है। और हर चीज का देखो एक हम कहेंगे कि हेल्थ वाइज एक लॉजिक हुआ करती है। इस चीज को लेकर मैं वाकई में बात करती हूँ कि जो हमारे फोर फादर्स थे वो वाकई में वो बहुत आगे थे हम लोगों से हर चीज में। फिर उसके बाद मौसम आ जाता है लीमू वाला और चिली वाला। वैसे अगर लीमू और चिली की बात की जाए ना, नींबू वाला हम लोग यहाँ पर लीमू बोलते हैं, वहां पर नींबू बोलते हैं ना। वैसे नींबू यहाँ पर भी बोलते हैं, लेकिन पंजाबी में नींबू हम बोलते हैं और उर्दू में लीमू बोलते हैं। वैसे ये तो है, हम यहाँ पे लीमू ही ज्यादातर बोलते हैं, नींबू बहुत कम बोला जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये रिचुअल जो है हमें काफी ज्यादा इंडियन फिल्म ड्रामास में देखने को मिलता है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता हमें देखने को मिलता है। जैसे लाल मिर्चें वारना, पानी वार कर फेंक देना नजरे बद के लिए। फिर उसके बाद जो है काला, यानी कि अगर आपके पास गाड़ी है या कोई चीज है उस पे काला धागा बांध देना या काला कपड़ा बांध देना। वैसे मैंने भी अपनी बाइक पे बांधा हुआ है काला धागा, वो मैंने इस तरह बांधा है किसी को नजर ना आएगा। लेकिन हाँ, वैसे ये चीजें तो यहाँ पर भी होती हैं, बट वही बात है ओरिजिन कहाँ से आ रहा है देखो ये सेम हम लोगों को पता है, बट लोगों को इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फिर ये मैं आपको बताता हूँ ना, मेरे साथ क्या हुआ था। जिसे मैं बाइक लेकर आया ना, नई जब मैं नई बाइक लेकर आया
तो जो है ना गली में आते साथ ही पता नहीं किसकी इतनी खूबसूरत नजर पड़ी कि उसका जो इशारा है ना वो पहले दिन ही खराब हो गया, फ्यूज हो गया इशारा। तो फिर मेरा दोस्त खड़ा हुआ था, उसने कहा कि किसी की बड़ी बुरी नजर लगी है, काली डोरी से बांध लो। मैंने कहा कहाँ पे डोरी, दो मुझे। फिर मेरी डोरी दी और वो मैंने से बांध ली। शुक्र है तब से लेकर अब तक सही है। फिर इसका मतलब है कि भाई ये चीजें बिल्कुल सही होती हैं, हकीकत है, होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बुक्स की। बुक्स का वाकई में सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उसका तो कोई भी इस तरीके से नहीं होता। फिर उसके बाद गणपति विसर्जन की बात करें तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया था। और जो सूरज वाला था कि जो सुबह उठकर तो मतलब जो पानी जिस तरीके से करते हैं उसका भी वैसे उसकी भी सिग्निफिकेंस मुझे पता थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर चीज की एक लॉजिक होती है। अब पता है क्या मजा आता है आपको, जब आपको ऐसी चीजों का पता चलता है ना, तो कोई आपसे यहाँ पर भी क्वेश्चन करता है मतलब हम लोगों से, तो हमारे पास एक लॉजिक होता है भाई कि हम क्या जवाब दे सकते हैं। आज धीरे धीरे जब नॉलेज बढ़ता है तो आपको इंटरेस्टिंग लगने लग जाती हैं और ज्यादा चीजें। वेल आई होप कि वो और भी वीडियोस बनाएं इस पर, और जो रिचुअल्स हैं वो भी हम लोग देख सकें और उनके बारे में जान सकें, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है रिचुअल्स देखने के बारे में और जानने के बारे में कि डिफरेंट लोगों किस तरीके से अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके पीछे क्या लॉजिक रहती है। आप जरूर बताइएगा अगर इसके अलावा और कोई रिचुअल्स जो आप जानते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।